Hello students, today I will explain you ENV lesson 15 of NCERT making pots. Now this is a story about a sparrow and a crow. Let us see. Once there was a sparrow called Fudgudi and a crow called Bennett. They were fast friends. One day Bennett said, "Oh Fudgudi, if you lay eggs first, then I will eat them, and if I lay eggs first, then you can eat them." Agreed? So Fudgudi agreed. Now the name of the sparrow here is Fudgudi and the name of the crow is Bennett. They are fast friends. Fast friends means best friends. So one day Bennett said, एक दिन Bennett ने क्या बोला कि फुदगुड़ी, अगर तुम फर्स्ट एग्स ले करते हो तो मैं उसे खाऊंगा, और अगर मैं एग्स फर्स्ट ले करूं तो तुम्हें खाना है. सो दोनों ने अग्री किया. A few days later, फुदगुड़ी laid an egg. सो थोड़े दिन के बाद फुदगुड़ी ने एग ले किया. Bennett said, "Give me your egg. I will eat it. Do give it, give it, give it." तो Bennett ने क्या बोला? तुमने पहले एग रखा. You give me. I will eat it. Fudgudi was scared. She said, "Yes, but I want you to first go and wash your beak in the river." तो फुदगुड़ी तो डर गई, बट उसने क्या बोला कि ठीक है मैं दे दूंगी, लेकिन पहले रिवर के पास जाकर अपनी बीक धो कर आओ. बीक मतलब चोंच. Bennett went to the river banks and said to it, "Oh river." "Yes brother," said the river. Bennett, "Oh river, please give me some water." तो Bennett रिवर बैंक के पास जाता है और वो उससे पानी मांगता है. The river said, "But how will you fill water? Get a pot." तो रिवर ने बोला कि पर तुम पानी किस में ले जाओगे? You get a pot. एक पॉट लेकर आओ. Now Bennett went to the potter and said, "Oh potter, please give me a pot." तो Bennett एक पॉटर के पास जाता है और वो उससे पॉट मांगता है. नाउ चिल्ड्रन, पॉटर कौन होता है ये पिक्चर में आपको बताया है. पॉटर जो पॉट बनाता है. वो पॉट कैसे बनाता है? वो इस पॉटर व्हील के ऊपर क्ले रखकर उसको शेप देता है और वो पॉट बनाता है. The potter said, "But how do I make a pot? Go and get some clay from the clay pit." तो पॉटर ने बोला कि बट मैं पॉट कैसे बनाऊं? पॉट के लिए मुझे क्ले चाहिए. ना क्ले मीन्स चिकनी मिट्टी जो होती है, जो पॉट के लिए यूज करता है पॉटर, उसे हम क्ले कहेंगे. तो उसने बोला कि क्ले पिट मीन्स गड्ढा जो होता है, जमीन के अंदर की जो मिट्टी चिकनी होती है, गड्ढा होता है, उसे हम क्ले पिट कहते हैं. तो Bennett went to the clay pit and said to it, "Oh clay pit, please give me some clay." तो क्ले पिट ने बोला कि मैं तुम्हें डिग करके कैसे दूं क्ले? क्ले निकालने के लिए बच्चों ऊपर से सॉइल, कचरे वाली सॉइल हटाकर नीचे खोदना पड़ता है. उसके बाद क्ले निकलती है, चिकनी मिट्टी, जिससे पॉट बनता है. तो so the clay pit said, "But how do I dig the soil? Get me a trowel from the blacksmith." तो क्ले पिट ने बोला कि तुम जाओ और ब्लैकस्मिथ से ट्रॉवेल लेके आओ. ट्रॉवेल मीन्स देखा है ना, कंस्ट्रक्शन में वो सीमेंट को लेवल करने के लिए यूज करते हैं. मैंने पिक्चर बताया है, इसे हम ट्रॉवेल कहते हैं. तो क्ले पिट ने बोला कि तुम ब्लैकस्मिथ से ट्रॉवेल लेकर आओ, उसके बाद मैं डिग करके तुम्हें क्ले दूंगा. Now students, in the story, the crow went to the clay pit and asked the clay pit for a trowel. So the crow goes to the blacksmith for a trowel. Now, in the story available in our Gujarati medium textbook, the crow visits deer, dog, cow, the village border, and then goes to the blacksmith for a sickle. I would like to share the extended part of the story which we have translated for you. So let us continue. The crow
approaches clay pit and says, "Oh clay pit, please give me some clay." यहाँ तक तो हमारी स्टोरी चली है. Now the clay pit tells, "How can I dig the soil? You bring me the deer's horn." बट यहाँ पे स्टोरी में क्ले पिट क्या बोलता है कि मैं डिग कैसे करूँ सॉइल? यू गेट मी डियर्स हॉर्न. नाउ डियर्स हॉर्न मीन्स हरण के सिंग होते हैं ना, उसको हम हॉर्न बोलेंगे. ठीक है. नाउ क्ले पिट ने हॉर्न मांगा. क्यों? क्योंकि इन ओल्डन डेज कोई टूल्स नहीं थे, तो वो हॉर्न्स यूज करते थे डिग करने के लिए. The crow then goes to the deer and asks for the horn. So the crow deer के पास जाता है और उससे वो horn मांगता है. The deer says, "Frighten me and take the horn. Call the dog so that he can frighten me." तो deer ने बोला कि तुम मुझे frighten करो. Frighten करो means डराओ. मुझे scare करो and then horn ले जाओ. तो उसके लिए तुम dog को लेकर आओ, तो वो मुझे डराएगा. The crow goes to the dog and requests him to frighten the deer. So crow वहां से dog के पास जाता है और dog को रिक्वेस्ट करता है कि तुम हिरण को डरा. The dog tells the crow, "I am very hungry. Give me some milk to drink, then I will frighten the deer." तो dog ने क्या बोला crow को कि I am very hungry. मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे कुछ मिल्क दो पीने के लिए. Then I will frighten the deer. उसके बाद मैं डियर को स्केयर करने आऊंगा, डराने आऊंगा. The crow then goes to the cow and asks for milk. The cow tells the crow, "I am very hungry. Get me some grass and then take the milk." तो crow काऊ के पास जाता है और काऊ को बोलता है कि मुझे थोड़ा मिल्क दो. तो काऊ भी वही बोलती है कि मैं बहुत हंग्री हूँ, मुझे थोड़ा ग्रास खिलाओ, उसके बाद मिल्क ले जाओ. The crow goes to the village border and asks for grass. तो then crow कहाँ जाता है? विलेज बॉर्डर के पास. विलेज बॉर्डर के पास देखते हो ना, विलेज के बाहर फील्ड्स रहते हैं, तो वहां पे ग्रास मिलती है और वो विलेज बॉर्डर से ग्रास मांगता. The village border tells the crow to bring a sickle and cut the grass. तो विलेज बॉर्डर ने क्रो को क्या बोला कि तुम एक सिकल लेकर आओ और ग्रास कट करो. Now what is a sickle? सिकल एक टूल है जिससे ग्रास कट करते हैं. पहले फार्मर्स अब इस सिकल से ग्रास कट करते थे, क्रॉप्स कट करते थे, लेकिन अब तो टेक्नोलॉजी बढ़ गई है. अब तो ट्रैक्टर से हार्वेस्टिंग होता है, उसको हम हार्वेस्टिंग द क्रॉप बोलेंगे. सिकल का पिक्चर मैंने बताया है. The crow then goes to the blacksmith and asks for the sickle. अब क्रो जाता है blacksmith के पास सिकल मांगने. The blacksmith gives a sickle to the crow. The crow then cuts the grass and feeds the cow. तो blacksmith उसे सिकल देता है, तो सिकल से ग्रास कट कर वो काऊ को खिलाता है. He milks the cow and gives milk to the dog. तो वो काऊ से मिल्क लेकर डॉग को मिल्क पिलाता है. The dog then frightens the deer. The crow takes the horn, digs the soil, collects the clay and gives to the potter. उसके बाद डॉग डियर को फ्राइटन करता है, फिर क्रो उससे हॉर्न लेकर सॉइल डिग करता है, क्ले लेकर पॉटर को क्ले देता है. The potter gives the pot to the crow. फिर पॉटर पॉट बनाकर क्रो को देता है. Then finally the crow fills the pot with water and washes its beak. उसके बाद finally क्रो पॉट को वाटर से भरकर अपनी बीक धोता है. Then he runs to eat फुदगुड़ीज eggs. अब बीक वॉश करने के बाद वो फुदगुड़ी के eggs खाने के लिए भागता है. By that time the sparrow's egg hatched. A little bird came out of it and flew away, far away from Bennett. But जब वो वहां जाता है तो बहुत सारा टाइम लग जाता है. स्पैरो के एग्स हैच हो जाते हैं. देखा है ना, जब एग्स हैच होते हैं तो अंदर से
बेबी बर्ड भी निकलता है, बेबी बर्ड को विंग्स आ जाते हैं और वो फ्लाई करता है, फायर अवे फ्रॉम बेनेट. Now children, this was the extended part of the story. Now coming back to our story, हमारी स्टोरी में क्लेपिट ने ब्लैकस्मिथ के पास भेजा था ट्रॉवेल लेने के लिए. So Bennett went to the blacksmith and said to him, "Oh blacksmith." The blacksmith said, "Yes, brother Bennett, what do you want?" तो blacksmith ने पूछा क्या चाहिए Bennett? Bennett ने बोला, "Please give me a trowel, मुझे ट्रॉवेल दो." The blacksmith said, "Sure, you can take the trowel, but do remember to return it." तो blacksmith ने बोला, ठीक है ट्रॉवेल ले जाओ पर उसको फिर रिटर्न कर देना. Bennett took the trowel and went to the clay pit. He digged the soil and got some clay. So Bennett ने ट्रॉवेल लेकर क्ले पिट के पास जाता है, वो सॉइल डिग करता है और क्ले लेता है. The potter made a pot for him. फिर पॉटर ने उस क्ले से उसके लिए पॉट बनाया. Bennett filled water in the pot and washed its beak. फिर बेनेट ने पॉट के अंदर पानी भरकर अपनी बीक धोई. He then ran to eat फुदगुड़ी's egg. उसके बाद वो भागकर फुदगुड़ी के एग खाने के लिए जाता है. By that time the sparrow's egg hatched. A little bird came out of it and flew away, far away from the Bennett. So इतने टाइम में स्पैरो के एग्स हैच हो गए और लिटिल बर्ड इट फ्लू अवे, वो उड़ गई लिटिल बर्ड. कहां पर? बेनेट से बहुत दूर. न जो स्टोरी हमने पढ़ी ये एक भोजपुरी राइटर ने लिखी हुई है, उनका नाम अन्नपूर्णा सिन्हा है. नाउ स्टूडेंट, व्हाट डू यू लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी? क्या सीखा आपने स्टोरी से? कि हम सब एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है. कोई एक पूरा काम नहीं कर सकता है. कुछ चीज बनानी है तो हमें एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ता है. इसका एग्जाम्पल मैं आपको दूंगी. समर में कॉटन कपड़े पहनते हो ना, तो कॉटन कपड़े कैसे बनते हैं? कॉटन फील्ड्स में देखा है, कॉटन का फील्ड, रुई का, वो कॉटन से हमारे गारमेंट्स जो बनते हैं, वो साइकिल अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि हाउ वी डिपेंड ऑन ईच अदर. नाउ फर्स्ट, फील्ड से जो कॉटन आता है उसके अंदर सीड्स रहते हैं, तो वो सीड को और कॉटन फाइबर को अलग किया जाता है. इस प्रोसेस को हम गिनिंग बोलेंगे. ठीक है. फिर वो कॉटन फाइबर को स्पिनिंग प्रोसेस के बाद यार्न बनाया जाता है. यार्न मीन्स स्ट्रिंग, धागा. इस धागे को, इस यार्न को फिर वीविंग और निटिंग से फैब्रिक का रूप दिया जाता है. इस फैब्रिक से फैब्रिक को फिर डाइंग करते हैं और उसका स्मूथ फैब्रिक बनता है. स्मूथ फैब्रिक फिर टेलर के पास गारमेंट्स बनने जाते हैं. ठीक है. ये साइकिल आपको बताएगा कि कितने लोगों के हेल्प के बाद ये काम पूरा होता है. सो वी लर्न हाउ वी आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर. वी आर इंटरडिपेंडेंट. एक दूसरे के ऊपर हम डिपेंडेंट रहते हैं. ये साइकिल आप ये पिक्चर में अच्छे से समझ सकते हो. नाउ रिमेनिंग पार्ट ऑफ द लेसन I am explaining you in the next part. Thank you.